5600 سے زیادہ بچوں کی ہارٹ کی سرجری کو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن میں 60,000 بچے سالانہ اس مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ایلیجبل پیشنٹ پر لگ جاتی ہے۔ ایسے بچے جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ان کے لیے الگ سے فنڈ موجود ہے۔ والدین کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ ہم تک رابطہ کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہاسپٹل بن جائے گا تو پھر ہم سال کے تقریباً 1000 بچوں کی ہارٹ کی سرجری کر پائیں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ایسے ادارے کی جس کی بنیاد ایک ذاتی المیہ کے بعد رکھی گئی، لیکن آج یہ ہزاروں معصوم بچوں کی زندگی کی امید بن چکا ہے۔ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ جو دل کے پیدائشی امراض میں مبتلا بچوں کے علاج میں پیش ہے۔ سال 2010 میں فرحان احمد صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی عائشہ دل کے ایک پیچیدہ پیدائشی مرض میں مبتلا ہے۔ تشخیص میں تاخیر اور محدود معلومات کے باعث عائشہ دوسری سرجری سے قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر فرحان احمد صاحب نے اپنی ذاتی تکلیف کو ایک مشن میں بدل دیا اور 2012 میں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا باقاعدہ آغاز کیا تاکہ کوئی اور بچہ علاج کی کمی کے باعث جان نہ گنوائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے CEO والنٹیئر فرحان احمد صاحب۔ فرحان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں۔ فرحان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی بیٹی عائشہ کا ہم نے جس طرح سے ذکر کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت کے یہ کچھ راز ہیں۔ قدرت آپ کو کسی مشکل میں جب مبتلا کرتی ہے تو دوسروں کے لیے خیر ہوتی ہے، جو کہ آپ کے ذریعے قدرت تقسیم کروانا چاہ رہی ہوتی ہے۔ اپنے ہاسپٹل کے حوالے سے بتائیے گا، اپنی جرنی کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ آپ کا ہاسپٹل جو ہے اس کی OPD جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور جلدی وہاں پر آپریشنز بھی سٹارٹ ہو جائیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اصل جو چیلنج ہے نا جی، وہ جیسے آپ نے بتایا کہ کوانٹم آف ڈیزیز اور لیٹ ڈائگنوسس کا بہت زیادہ ہے۔ تو جب عائشہ کا ہمیں پتہ چلا تو اس وقت پہلا سٹرگل یہ تھی کہ فائنانشیل ریسورسز ہوتے ہوئے بھی آپ کسی صحیح فزیشین تک نہیں پہنچ پاتے، اور اللہ کی شان وہ عائشہ کی پہلی سرجری ٹھیک ہو گئی۔ سیکنڈ سرجری میں اللہ کو کچھ اور منظور تھا، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے راز اللہ جانتے ہیں اور وہی ہم سب کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی ہم نے پھر فوکس کیا پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن پر، اور شروع میں ہمارا پہلا چیلنج تھا کہ ہمیں کوئی جانتا نہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر ہم نے اپنے قریبی دوستوں سے، فرینڈس سے پیسے لے کر اور بچوں کی ٹریٹمنٹ کا ایک نظام بنایا۔ تو آج الحمدللہ ہمارے ادارے میں زکوٰۃ کا الگ اکاؤنٹ ہے، ڈونیشن کا الگ اکاؤنٹ ہے، ہاسپٹل کنسٹرکشن کا الگ اکاؤنٹ ہے۔ ابھی تک اللہ کے فضل سے 5600 سے زیادہ بچوں کی ہارٹ کی سرجری کو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن نے پورے پاکستان سے اسپانسر کیا۔ اچھا فرحان صاحب، اب یہ OPD کا آغاز ہو چکا ہے اور کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ جی الحمدللہ ہمیں جی یونیورسٹی آف لاہور نے نا لینڈ ڈونیٹ کر دی تھی 2021 میں، تو اس وقت سے ہمارا جو ہے کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے۔ ابھی تک اس ہاسپٹل میں جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ بھی پائیں گے تقریباً کوئی 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے، اور اس کی ٹوٹل 7 فلور ہیں، جس میں سے 1 فلور گراؤنڈ ہم نے اس کو فنکشنل کر دیا ہے، جس میں ابھی فری بچوں کی آؤٹ پیشنٹ یعنی OPD ایز آف ٹوڈے ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کی اگر آپ کسی پرائیویٹ فیسلٹی میں جائیں خدا نخواستہ تو تقریباً کوئی 5 سے 7 ہزار کا خرچہ آتا ہے OPD کے لیے، یعنی کہ آپ کو فزیشین کی فیس دینا پڑتی ہے اور ایکو کارڈیوگرام کے پیسے دینا پڑتے ہیں۔ وہ الحمدللہ جی اپریل 2025 سے ہمارا ادارہ فری آف کاسٹ کر رہا ہے۔ اس سال میں انشاءاللہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم ایک آپریشن تھیٹر اور ایک کیتھ لیب کے ساتھ ان پیشنٹ کو شروع کر لیں، جس کے لیے تقریباً 1 ارب کی فنڈنگ ریکوائرڈ ہے۔ الحمدللہ وہ بھی اللہ نے چاہا تو پوری ہو جائے انشاءاللہ۔ فرحان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس تو آبویسلی نمبرز بھی ہوتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو کہ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اس وقت؟ جی تو محتاط اندازے کے مطابق نا دنیا میں ہر 100 میں سے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو پیدائشی دل کا عارضہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں یا جو لو انکم کنٹریز ہیں اس میں یہ شرح زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم 1 آؤٹ آف 100 کا ہی انسیڈنٹ لے لیں تو ہم بات کریں تقریباً 60,000 بچے سالانہ اس مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو جو نومولود ہیں ان کو فرسٹ ایئر آف دیئر برتھ 1/3 کو آئیدر سرجری کی ضرورت ہوتی ہے یا انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو امپورٹنٹ نقطہ وہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم 20,000 نیو بورن کی کیپیسٹی ہمارے ملک میں ہوگی تو پھر وہ نیو بورن سروائیو کر سکیں گے۔ بیک لاگ کی اس وقت پوزیشن دیکھیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سالانہ اگر 60,000 بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک میں پورے ملک میں کیپیسٹی ہی اگر 15 سے 20 بچوں کے ہارٹ کے سرجن ہیں، 60 سے 70 کارڈیولوجسٹ ہیں، تو بیک لاگ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ بہت زیادہ اور انسٹیٹیوشن بھی اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھیں اور اس پر ہم سب لوگ کلیکٹیولی کام کریں۔ جی
अच्छा फरहान साहब, एक ओपन हार्ट सर्जरी में टोटल कितना खर्चा आता है? जी, इस वक्त जो एवरेज कॉस्ट है ओपन हार्ट सर्जरी की बच्चे की, वो तकरीबन 8.5 लाख से लेकर कोई 10.5 लाख के करीब इसका खर्चा आता है जी। और मेजॉरिटी हमारे माशाल्लाह ज़कात के डोनर हैं, जो ज़कात की जो स्पेंडिंग है वो ज़कात एलिजिबल पेशेंट पर लग जाती है। ऐसे बच्चे जिनको ज़कात नहीं लगती उनके लिए अलग से फ़ंड मौजूद है। लेकिन जो हम तक पहुँच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको लाजमी ट्रीट करवाते हैं जी। तो फरहान साहब, आपका फ्यूचर में टारगेट क्या है? जब आपकी ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगी, ऑपरेशन थिएटर्स, तो कितने बच्चे हैं जिनको आपने रजिस्टर कर रखा है जिनका फौरी तौर पर इलाज होगा? जी, तो बेसिकली जी ये जो बच्चों का दिल का हॉस्पिटल, ये पहला बच्चों का स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक कार्डियक हॉस्पिटल पाकिस्तान में बनेगा। और जब ये बन जाएगा इंशाल्लाह, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 75 बेड का है, तो हम साल के इंशाल्लाह 2000 प्रोसीजर कर पाएंगे। एज़ ऑफ टुडे हमारा जो क्यू है वो अल्हम्दुलिल्लाह आती है और साथ ही ऑपरेट होते जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने मुख्तलिफ पार्टनर्स हॉस्पिटल के थ्रू बच्चों का आज भी सर्जरीज करवा रहे हैं। जिस तरह पेशावर में 2 हॉस्पिटल हैं, इस्लामाबाद में 1 हॉस्पिटल है, लाहौर में 3 हॉस्पिटल हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो नॉर्मल दिल के सुराख वाले मामले हैं उनको उसी शहर में ट्रीट करवा दिए जाए। यानी कि इट मेक नो सेंस कि बेचारा एक बच्चा पेशावर से ट्रैवल करके वो लाहौर आए सिर्फ बच्चे का हार्ट का दिल का सुराख बंद करने के लिए। यानी कि फरहान साहब, पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ये सहूलत मौजूद है आवाम के जी, लिए। अगर हम तक पहुंच जाएं तो इंशाल्लाह हम उनका इलाज तो ये करवा जो वालिदैन है, जो किसी बच्चे का अगर ये इशू आ जाता है, पे नहीं कर पाते, तो उनसे फिर आप कैसे जी, राब्ता तो हमारा ना जी जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं ना, बच्चों के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, उन तक हमारी रसाई है। उनको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ऐसा बच्चा जिसका वालिदैन के पास पैसे ना हो और उनको जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो हम तक रब्ता कर लेते हैं जी। अच्छा, मिसबाउल हक साहब भी आपके साथ हैं और हम देख भी रहे हैं, अब पीछे जो फुटेजेस चल रही हैं कि वो भी आपके शाना बशाना आप काम कर रहे हैं। तो क्या अंदाज़ा है कि आपका ये जो हॉस्पिटल है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा और कितने जो यहाँ पर ऑपरेशंस हैं वो किए जा सकेंगे? जी, तो मिसबा भाई का जी अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में रिटायरमेंट के बाद मैंने ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में मैं प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा था, तो मिसबा भाई के दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा मिसबा भाई रिटायर हो रहे हैं, आप अपना प्रोजेक्ट उनको प्रेजेंट करें। 2016-17 में मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिर माशाल्लाह मिसबा भाई ने इस पूरे प्रोजेक्ट को समझा। तो अब वो इस वक्त हमारे एक बोर्ड मेंबर हैं। तो ये चैरिटी में वो इक्वली जिस तरह मैं वॉलंटियर काम करता हूँ वो वॉलंटियर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिसबा भाई के आने के बाद से जो हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हद तक उसमें हमें अवेयरनेस भी मिली और फंड रेजिंग का भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि ज़्यादातर मुल्क से बाहर लोग जो हैं वो माशाल्लाह हमारे क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा यानी कि वो चाहते हैं उनसे मुलाकात हो जाए। तो यूएस के अंदर हमारी एक रजिस्टर्ड चैरिटी है, यूके में रजिस्टर्ड चैरिटी है, कनाडा में रजिस्टर्ड चैरिटी है। तो मिसबा भाई अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बगैर हमसे कोई चार्जेस लिए हम लोग जाते हैं वहाँ, पैसे इकट्ठे करते हैं। तो जब इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल बन जाएगा तो फिर हम साल के तकरीबन 1000 बच्चों की हार्ट की सर्जरी कर पाएंगे और 1000 के करीब इंटरवेंशन कर अच्छा पाएंगे। फरहान साहब, बतौर रज़ाकार आपका इस फाउंडेशन में क्या किरदार है उसके बारे में? तो जी मैं एज ए वॉलंटियर काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आईटी की कंपनी है जहाँ से मेरा घर का खर्चा चल जाता है। तो मैं मेरा मतलब फोकस है कि हम जल्द अज जल्द ये हॉस्पिटल का जो सिलसिला है वो कंप्लीट हो और फिर इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल लोगों को एज ए सीईओ लेकर आएँ। अभी आपको पता है कि हमारे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा पैसा या बच्चों की हार्ट की ट्रीटमेंट पर लग जाए या बच्चों के हार्ट के हॉस्पिटल पर लग जाए। अच्छा, तो आप फंड रेजिंग जो है वो किस तरह से करते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है आपका? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके डोनर बैरून मुल्क में भी है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जी रजिस्टर्ड चैरिटीज़ हैं यूएस में, यूके में, कनाडा में। तो हम साल में 3 दफ़ा ट्रैवल करते हैं। तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी हमारे साथ होती है, मोस्टली मिसबा भाई साथ होते हैं। फिर हम जाते हैं वहाँ, हमारे को 30 चैप्टर हैं यूएस के अंदर, हर चैप्टर में लोग वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं। तो हमारे जाने से पहले शेड्यूल तय होते हैं, हम जाते हैं वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके प्रोजेक्ट बताते हैं। फिर हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को कहते हैं कि आप पाकिस्तान आएँ और आप देखेंगे प्रोजेक्ट की क्या सूरत हाल है। तो एक तो ये फंड रेजिंग का काफ़ी एक्टिव। फिर हमारा सोशल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्टिव है। कोशिश करते हैं कि लोगों को थ्रू आउट द ईयर ये मैसेज पहुँचाते रहें। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन बच्चों के इलाज हो चुके हैं ना, उनके वालिदैन भले उनके पास नहीं भी होते ना, लेकिन वो फिर जब उनका बच्चा ठीक होकर घर चला जाता है तो वो भी अपनी डोनेशन में से कुछ ना कुछ अमाउंट या अपने सर्कल में जो लोग हैं उनको इनकरेज करते हैं कि भाई मेरे बच्चा ठीक हो गया तो इस तरह के बच्चे और भी ठीक हो जाएं। अच्छा फरहान साहब, ये भी कंफर्म कर दें कि क्या आपके इदारे को ज़कात दी जा सकती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरिया बोर्ड है जी, और आप हमारी वेबसाइट पर देखें तो शरिया का एक कंप्लाइंस का सर्टिफिकेट है।
हमारा इदारा शुरू दिन से ना, एक तो ज़कात हम इकट्ठी करते हैं, अलग अकाउंट में जाते हैं, हम कैश नहीं रिसीव करते किसी तरह की भी डोनेशन। हम कहते हैं डायरेक्ट आप हमारे बैंक अकाउंट में जमा कराएं। तो ज़कात का बैंक अकाउंट अलग है, और ऑफ कोर्स जितने भी ज़कात रिलेटेड प्रोसीजर हैं वो ज़कात एलिजिबल, यानी कि कंप्लायंस के मुताबिक स्पेंडिंग होती है जी। ठीक। अच्छा फरहान साहब, इस साल के वो अगर हम देख लें और अगले साल के हवाले से आपके कौन से बड़े टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं? जी, तो बच्चों के हार्ट के प्रोसीजर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो 2025 में 1000 बच्चों को अल्लाह के फजल से हमारी फाउंडेशन ने मिलकर ऑपरेट करवाया। अगले साल हमारा यही टारगेट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के हार्ट के इलाज भी हो सकें। अस्पताल की जो कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन के हवाले से है, तो हम एक कैथ लैब और एक ऑपरेशन थिएटर और 10 बेड ICU के साथ इंशाल्लाह 2025 में इन पेशेंट खोलना चाहते हैं। ठीक सही। अच्छा फरहान साहब, जो बैरून मुल्क मुकीम लोग हैं वो किस तरह से एहतियात दे सकते हैं, क्या ऑप्शन है और तरीका कार क्या है? जी, जैसे US, UK, कनाडा में तो चूँकि रजिस्टर्ड चैरिटीज़ हैं, तो वो जैसे ही ऑनलाइन अपने पैसे देंगे तो उनको उसकी टैक्स की एग्जम्पशन भी मिल जाती है। पाकिस्तान में भी हमारा इदारा टैक्स एग्जम्प्टेड है। अगर आपकी 100 रुपये इनकम है, 10 रुपये आपने हमें डोनेट किए, तो 90 के ऊपर टैक्स होगा, और 10 रुपीज़ जो है वो फाउंडेशन के नॉन टैक्सेबल अमाउंट में कंसिडर होंगे। जो बाहर के बाकी ममालिक हैं वो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिस तरह सऊदीया हो गया, UAE हो गया, माशाल्लाह वहाँ भी बहुत पाकिस्तानी हैं। बाकी पूरे ममालिक में माशाल्लाह बहुत पाकिस्तानी हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाकर वो डायरेक्टली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। फरहान साहब, आगे रमज़ानुल मुबारक भी है, तो क्या आप देखते हैं कि किस तरह से आप आवाम को अपील करना चाहेंगे कि वो आपके हॉस्पिटल के लिए डोनेट करें, और आप भी क्या कोई चैरिटी प्रोग्राम्स भी रखते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पर? जी, हमारा ना जी असल में सारे फंड्स लगते हैं या तो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में, या हमारे लगता है बच्चों की हार्ट की ट्रीटमेंट में। तो हमारे पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर है, मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके इदारे के तवस्सुत से कि आपकी जो भी ज़कात होगी वो पेशेंट ट्रीटमेंट पर लगेगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दीजिए ताकि ज़कात के मुस्तहिक बच्चों का इलाज जल्द अज जल्द हो सके। ये बीमारी इतनी अजीब है कि अगर टाइम पर डायग्नोस हो जाए और टाइम पर बच्चे की हार्ट की ट्रीटमेंट हो जाए, तो मोस्ट केसेस में फॉर लाइफ बच्चा ठीक हो जाता है, यानी ये बीमारी दोबारा नहीं आती खुदा न खास्ता। तो आपकी जो ज़कात है ना, वो ना सिर्फ उस बच्चे की ट्रीटमेंट पर लग रही है बल्कि उसके फ्यूचर पर लग रही है। और एक आखिरी बात मैं चाहूँगा, ज़रूर आपके इदारे की तवज्जो से रिक्वेस्ट करूँ कि माँ बाप के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल है। देखें, एक बच्चा जो बेचारा जिसने सुबह स्कूल जाना था, और जब वो बाप के साथ साइकिल पर या बाइक पर निकलता है और उसकी एकदम तबीयत ख़राब होती है, तो वो वापस आकर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्कूल वो जाता है हॉस्पिटल। वहाँ एक हफ़्ता बच्चा स्ट्रगल करता है, और यही अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। जी, बहुत खूबसूरत काम कर रही है ये फाउंडेशन, और आपका जो मकसद है वो भी काबिले तारीफ़ है, सराहा जाने वाला है। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपके वक्त का।